صحیح اب جھنڈن کے متے کہو دوستو جھنڈن کے لارا اسان جو قائد ہے تقریر کرے تو جھنڈا ان ہوا میں یہ لہرا جائے یہ متے کرے لہراؤ جیس تک اسان جو قائد جو تقریر ہلتو تمہاں جا جھنڈا یہ لہرا جن جی اسان جو قائد جس تک تھکے نا تمہاں جھنڈن کے نہ تھکایو یہ لہراؤ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم جناب سردار رفیق بھٹی صاحب محترم جناب ماما اکبر گولو صاحب اور ہمارے بھائی محمد عالم خان صاحب اور ہمارے پیارے دوست عبدالرشید کیازئی صاحب اور میرے بھائی نیاز احمد مکسی صاحب اور پورے علاقے کے محترمین موذین اور جتنے اقوام ہیں ہمارے علاقے میں اور پورے عوام نوجوانوں کو بزرگوں کو میرے بھائیوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام تعریفیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو ہمارے گوادر کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم پچھلے کئی سالوں سے روا رکھا گیا ہے اور خاص کر یہ کچھ دن پہلے وہاں پر جو بدترین شیلنگ کی گئی فائرنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا اور اس میں ہمارے ماؤں پر بہنوں پر لاٹیاں چلائی گئی یہاں تک کہ ہمارے بہنوں کے ہاتھ ٹوٹ گئے مگر بدقسمتی سے کہ بلوچستان کی حکومت کہنے کو تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی بلوچ ہے کہنے کو تو وزیر داخلہ صاحب بھی بلوچ ہے مگر بدقسمتی سے یہ کسی بلوچ کے مددگار نہیں ہے یہ کسی بلوچ کے لیے ان کی آواز بلند نہیں ہوگی یہ جب بھی آواز اٹھائیں گے اپنے مفادات اور اپنے پیٹ کے لیے اٹھائیں گے۔ شیم شیم کیا میرے بھائیوں پانی مانگنا کوئی دہشت گردی ہے؟ میں آپ لوگوں سے جعفر آباد کے عوام پوچھنا چاہتا ہوں کیا پانی مانگنا کوئی دہشت گردی ہے؟ کیا اسپتال مانگنا کوئی دہشت گردی ہے؟ انڈسٹری آپ نہیں دیتے وہاں پر فیکٹری آپ نہیں لگاتے بارڈر کو آپ ترقی نہیں دیتے بارڈر کو آپ بند کرتے ہیں کیا بارڈر کے لیے ڈیمانڈ کرنا کہ بارڈر کو کھولو جو صدیوں سے ایران کے ساتھ ہمارا کاروبار تجارت چل رہا ہے اس کو بحال کرو کیا اس کو لیے آواز اٹھانا دہشت گردی ہے؟ میرے بھائیوں کیا جو ہمارے بھائی یہاں تک کہ ہمارے بلوچ قوم کے عورتیں اٹھائی گئی ہے لاپتہ کی گئی ہے ہزاروں کے تعداد میں بلوچ نوجوانوں کو کیا مولانا عنایت الرحمان صاحب کا یہ ڈیمانڈ یا عبد المجید کا یہ ڈیمانڈ یا بلوچستان کے غریب عوام کا یہ ڈیمانڈ کہ ان کو بازاب کرایا جائے ہم نہیں کہتے کہ ان کو آزاد کرو ان کو عدالتوں میں پیش کرو اگر اس ملک کا کوئی قانون ہے تو ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کرو جو عدالت ان کو سزا دے ہم امن صدقہ کہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ ہمارے بلوچوں کے روایت ہے جب ہمارے منگلیاں بھی ہوتی ہے تو جب تک اس آدمی کا جس کا منگلی ہوا ہے اس کا جو منگیتر ہے یا تو اس کا موت کا پتہ چلے یا زندہ ہے تو لڑکیاں بیٹھے 20 سال سے 15 سال سے ہمارے بہنیں بیٹھی ہوئی کہ ان کے منگیتر یا ان کے شوہر واپس آئیں گے بدقسمتی سے اگر آپ نے ان کو شہید کر دیا ہے تب بھی بتائیں کہ ہم نے مار دیا آپ لوگوں کو اگر وہ زندہ ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کرو۔ نعرہ تکبیر اور میرے بھائیوں یہ جو ضیاء لانگو صاحب کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے گوادر کے لوگ دہشت گرد تو آپ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے ہو بلوچستان کے عوام پر ظلم کر رہے ہو ان کے حقوق کھا رہے ہو ان پر گولیاں اور لاٹھیاں تم برساؤ اور دہشت
दहशतगर्द गरीब आवाम है। इन हुक्मरानों पे, इन हुक्मरानों पे, इन जालिमों पे नारा तकबीर, नारा तकबीर। इंजीनियर अब्दुल मजीद मादानी कदम बढ़ाओ, इंजीनियर अब्दुल मादानी कदम बढ़ाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलोचिस्तान के इन बैठों ने, मेरे भाइयों ने, हमारे नौजवानों ने साबित किया कि हम इंशाअल्लाह मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हम तुम्हारे इन बंदूकों से डरते हैं, न तुम्हारे गोलियों से डरते हैं, न तुम्हारे एफआईआर से डरते हैं, न तुम्हारे जेलों से डरते हैं। तुम्हें जितना जेल में डालना है, जितनी गोलियां बरसानी है, इंशाअल्लाह अब हम उठ खड़े हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तुम कितने मौलाना फजल रहमानों को जेल में बंद करोगे? बलोचिस्तान के आबादी 1.25 करोड़ से भी ज्यादा इंशाअल्लाह, इसमें लाखों मौलाना हिदायतुर रहमान है इंशाअल्लाह। ये सब अपने वतन पर, अपने कौम पर कुर्बान इंशाअल्लाह, अपने बहन भाइयों पर कुर्बान है इंशाअल्लाह। तुम कितना मौलाना बांधोगे, हर घर से मौलाना निकलेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसी तरह का जुल्म जिस तरह ग्वादर में जारी है, उससे कम यहाँ पर भी जुल्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो सैलाब में एक यहाँ का बाप का पहले था, वो मेरा गरीब जितने देर में अपने कपड़े नहीं बदलता, हमारे बोतार उतने वक्त में अपनी पार्टी बदल देते हैं। इनका वही मिसाल है, जैंदास घोड़ा सर असेरे बोतार कूदे भर। ये लौटे हैं वाकई ये अपने मफादात के लिए इनके पास कोई नजरिया नहीं है। ये कभी बाप के हैं, जब बाप मर गया तो अम्मा के हो गए, अम्मा चली गई तो फिर दादे के हो गए। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनका मफाद अपने पेट तक मौजूद है, पेट से ज्यादा ये नहीं सोचते। मेरे भाइयों, ये जो सैलाब आया जानबूझकर पूरे शहर को डुबाया गया और फिर रिपोर्ट दी गई कि डेरा लायार शहर नहीं डूबा। जानबूझकर पूरे गुरबा के जमीनों को, खड़ी चावल के फसलों को डबो दिया और कह दिया कि जाफराबाद नहीं डूबा। मेरे भाइयों, पूरे बलोचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब आया, वहां पर हर खानदान को 25,000 रुपये मिले, मगर बदकिस्मती से जाफराबाद के अवाम को 5 रुपए भी नहीं मिले। वजीर आजम साहब यहाँ तशरीफ लाए, चोरों की तरह छुपता फिरता रहा। सबसे ज्यादा मुतासिर सोबतपुर और जाफराबाद हुए, मगर बदकिस्मती से एक बार भी वजीर आजम क्या, हमारे वजीर आला भी जाफराबाद नहीं आए। और जितनी हमारे बलोचिस्तान की सूबाई क़यादत है, जो कौम परस्त लीडर है, उनमें से भी किसी ने अपने पांव खराब नहीं किए, किसी ने नहीं पूछा कि तुम लोगों का क्या हाल है। कुछ देते नहीं, कम से कम पूछते तो सही। नारा तकबीर, नारा रिसालत। मेरे भाइयों, यहाँ पर जिस तरह का जुल्म जाफराबाद के अवाम के साथ सैलाब में रवा रखा गया, जितने भी वहां से अगर हुकूमत के तरफ से या बाहर के एनजीओ यहाँ काम करने आते थे तो कहा जाता था उनसे, यहाँ के हमारे नुमाइंदे, हमारे बोतारों की तरफ से, कि जाफराबाद में किसी को कुछ ना दो, डेरा लायार में तो एक दाना भी नहीं देना है, क्योंकि डेरा लायार डूबा ही नहीं है। इनको शर्म नहीं आती। आज भी डेरा लायार के कई वार्ड्स में आज भी पानी खड़ी है। आज भी उस पानी को हम निकालने की इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, नारा तकबीर, नारा रिसालत। इंजीनियर अब्दुल मजीद कदम बढ़ाओ, इंजीनियर अब्दुल मजीद कदम बढ़ाओ। पूरा जाफराबाद तबाह बर्बाद किया गया। इन लोगों ने जबरदस्ती पूरे जाफराबाद को दबाया। मगर मैं आप लोगों से एक और भी अर्ज करना चाहता हूं, देखो भाइयों मेरे, आइंदा इससे ज्यादा बारिश और सैलाब होने का खतरा है, मगर इन बदकिस्मतों को
कभी आपने देखा है कि वो आप लोगों के लिए सोचे कि क्योंकि हुक्मरानी इनके हाथ में, क्या आपको पता चला क्या कोई आपका एमपी है, जिंदा है, कहीं नजर आ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि आप लोगों का एमपी है और वो जिंदा है? नहीं। किसी ने उसको देखा? नहीं। सैलाब में नहीं, अभी नजर आ रहा है कहीं? नहीं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप लोगों का कोई एमएलए है और वो जिंदा है? नहीं। एमएलए तो इतना नालायक है, जाकर कौमी असेंबली में तकरीर झाड़ता है, वहाँ कहता है कि मेरे डीसी फोन नहीं उठाता, तो किसी ने वहाँ कहता है कि कोई डीसी मेरा फोन नहीं उठाता। फिर शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि डीसी तुम्हारी फोन नहीं उठाता, डूब के मरना चाहिए तुम्हें कि डीसी तुम्हारी फोन नहीं उठाता। फिर तुम किस तरह हमारी नुमाइंदगी करने के काबिल हो? 7 लाख लोग तुम्हारे पीछे और डीसी तुम्हारी फोन नहीं उठाता, और तुम जाकर इस्लामाबाद के ऐवानों में रोते हो कि डीसी मेरा फोन नहीं उठाता। और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, इसमें हमारी अपनी भी बहुत सारी गलतियां और कोताहियां हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन अपने आप को बार बार एक सुराख से नहीं डसाता। हम पिछले 75 सालों से इसी रोजान के सुराख में हाथ दिए जा रहे हैं, हर बार डसे जाते हैं और फिर बोलते हैं बोतार कुछ नहीं किता, कुछ नहीं दिता, कोई रोड है, ना नाली है, ना एजुकेशन है, ना अस्पताल है, कोई सहूलत नहीं है। फिर 4 साल 11 महीने गुजर जाते हैं, ये जादूगर, ये नौसरबाज, ये ठग आते हैं, मुस्कुराते हैं, एक्शनें दिखाते हैं, हाथ घुमाते हैं, फिर हम इन जालिमों के फिर उसी सुराख में हाथ। इसका मतलब कि हमें सोचने की जरूरत है। हम जब कहते हैं कि आशिक रसूल है, हमारा महबूब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहता है कि मोमिन अपने आप को बार बार एक जालिम से धोखा नहीं खाता, हम क्यों बार बार उनके जाकर धोखे में फंस जाते हैं? और मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह उस कौम की किस्मत नहीं बदलती जो अपने लिए खुद जद्दोजहद न करता हो। जब हमारे पास कुरान मौजूद है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सीरत को अल्लाह ने क़यामत तक आप और मेरे लिए महफूज रखा है, हम खुद जाकर अंधेरों में भटकते हैं, फिर रोते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है। मुझसे वादा करो कि आज के बाद, जाफराबाद के अवाम, मुझसे वादा करो कि आज के बाद हम किसी जागीरदार के पांव नहीं पड़ेंगे। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। अगर यहाँ पर एक बात और भी चलती है कि एतरामन, फिर मेरे नबी ने कहा जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है, तुम्हारी माँ की सूरत में। अगर इतना भी एहतराम के शौक पड़ा हुआ है तुम्हें, तो पहले उस जन्नत के जाकर पांव पर पड़ो जो तुम्हारी घर में मौजूद है, तुम्हारी माँ की सूरत में। उसका हक है तुम पर। जिन चोरों को जूते मारने चाहिए, जाकर उन चोरों के जूतों पर पांव रखकर फख्र महसूस करते हो। जब तक खुद को नहीं बदलोगे, जाफराबाद नहीं बदलेगा। इसको बदलना आप लोगों के हाथ में इंशाअल्लाह। और मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है कि अनकरीब वो दिन आ गया है, ये 2023 जिनका हिसाब का साल होगा, जिनको 75 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। ये नस्ल दर नस्ल, ये खून खवार गिद्ध आपको नचोड़ने के लिए नस्लें अपनी तैयार कर रहे हैं। आप ये जहाँ पैदा होते हैं, क्या इनके बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या इनके औरतों के इलाज क्या हमारे सिविल अस्पताल में होता है जहाँ पर पेनाडाल नहीं मिलता? तो इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ हमारे ऊपर हुक्मरानी करने और हमारे वसाइल लूटने के लिए यहाँ आते हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीम। इस आवाज को हर भाई तक पहुंचाओ, हक और साथ का साथ दो। इंशाअल्लाह हम इस उम्मत को अल्लाह ने जलालत के लिए पैदा नहीं किया, नालियों के पानी के पीने के लिए पैदा नहीं किया। अभी आप और हम ये 1 किलोमीटर का फासला शहर में तय कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे पांव से कितनी बड़ी मिट्टी उड़ रही थी, जो बिल्कुल एक लग रहा था कि तूफान चल रहा है मिट्टी का। ये हमारे पांव का जो मिट्टी, तो ये आपके शहर का हाल है। वहां से आप यहां तक नहीं आ सकते थे।
हर जगह पानी खड़ी हुई थी। और इस रोड का हालत देखो, अपने जमीनों का हालत देखो, अपने नहरों का हालत देखो। जब चावल के लिए पानी की जरूरत होती है तो हमारे पास पानी नहीं होता। जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो जाफराबाद पूरा पानी के नीचे डूबा होता है। तो इसके लिए हमें और आपको बदलना है। और ये बदलेगा कैसे? ये इंशाअल्लाह अज़ीम वोट के ताकत से हम बदलेंगे इंशाअल्लाह। ये वोट कोई मामूली चीज नहीं है। ये जो आप इसको कुछ नहीं समझते हो, सबसे बड़ा ताकत यही वोट है। हम कहते हैं कि भाई मेरे सरदार का हुक्म था, बोतार का हुक्म था, मीर ने कहा कि भाई उमर खान को या फाइक खान को, इन चोरों को, इन लुटेरों को वोट दो। असल में मेरे भाइयों, जब ये वक्त आया, ये जब सैलाब में बलोच माएं, बलोच बेटियां, बलोच बहनें रोडों पर, नहरों के कड़ों के ऊपर पड़े हुए थे। इन जालिम जो कहते हैं आपसे कि इन जालिमों को वोट दो, क्या उनको तौफीक हुई कि इनसे कह दे कि आज मेरे कौम के लोग आज रिंद रोडों पर पड़े हुए हैं, आज बुकटी रोडों पर पड़े हैं, आज बिरोई रोडों पर पड़े हैं, आज लाशारी रोडों पर पड़े हैं, आज जामोट रोडों पर पड़े हैं। मैं आप लोगों से पूछ रहा था, पूरे हमारे इलाके के लोग रोडों पर पड़े हुए थे, शहर पूरा पानी से डूबा हुआ था। किसी एक जालिम ने कहा कि जाओ मेरे कौम को कुछ दो नहीं, कम से कम पूछो कि जिंदा हो कि मर गए। ये जालिम, ये जागीरदार सुनते हैं कि पिछले 18 के इलेक्शन में फाइक खान ने 11 करोड़ खर्च किए। अभी बल्दियात इलेक्शन में रोता रहता है कि मेरे 3 करोड़ खर्च हो गए। क्या कभी इस हालत में जो आप और हम मर रहे थे भूख से, कि इन जालिमों को इतनी तौफीक हुई? ये एक गरीब के घर में जो इनके हमसाये में रहते थे, इनके हवेलियों के साए में जो लोग रहते थे, क्या 1 किलो आटा उनके घरों तक पहुंचाया? उल्टा जो आपके हक वहां से आ रहे थे बाहर से, या कोई एनजीओ ला रहा था, या कोई बलूचिस्तान के गवर्नमेंट से आ रहे थे, ये उनको भी लूट के ले जा रहे थे, अपने गोदाम में भर रहे थे। यही हुआ 2010 के सैलाब में, यही हुआ 2012 के सैलाब में, यही 2022 में हुआ। तो मेरे भाइयों, इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को पहचानने की जरूरत है और खुद को बदलने की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं और एक और भी बात कहना चाहता हूं कि ये जो शख्सियत परस्ती के मर्ज में पड़े हुए हैं मेरा कौम, ये शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से भी खतरनाक है, ज्यादा नुकसानदेह है। बुत तो आपकी मर्जी, आप जाए मिठाई ले जाए, फूल ले जाए, वो आपसे कोई डिमांड नहीं करता, मगर ये जो शख्सियत है, ये तो नफ्स रखता है, ये औलाद रखता है, ये ख्वाहिशात रखता है, ये तो आपको अपने गिर्द घुमाएगा, अपने मुफादलात के तरफ घुमाएगा, अपने मर्जी पर चलाएगा, आपके हक लूटेगा। उसको तो हर चीज की जरूरत होती है। तो शख्सियत परस्ती से निकलने की जरूरत है, नजरिया की तरफ आना चाहिए। और हमारा आपका नजरिया क्या है? हमारा आपका नजरिया यही है जो हम नमाज के हर रकात में मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। तो मेरे भाइयों, ये रास्ता कौन सा है? रास्ता है सीधा कुरान का, रास्ता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ने का। यही हमारी दुनिया और आखिरत को संवार सकती है मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह। बार बार एक सुराख से डंगाते हैं, फिर बोलता है, वो सिंधी में एक मिसाल है ना, नाले चाहती चाहे अल्लाह बचाया, चाहे कम छा कंदो, चाहे नांगन जे बिरड़न में हथ दींदो। जब ये सांपों के मुंह में हम अपना हाथ देंगे, अपना वोट इनके मुंह में डालेंगे, ये तो काम इनका डसना है। जब से हम जवान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ रहा था तो फाइक खान साहब उस टाइम मिनिस्टर थे, किसके? नून लीग के। फिर जेल चला गया चोरी के इल्जाम में, सजा हो गई, 26 तक नायल हो गया। फिर हमने देखा कि नून गया, पीपल्स पार्टी आ गया, बोतार पीपल्स पार्टी में थे माशाल्लाह से, पीपल्स पार्टी चली गई, फिर नून आया, फिर ये नून के नारे लगा रहे थे। नून को मुशर्रफ ने गुम किया तो ये वजीर आजम बन गए हाजी साहब हमारे। ये देखते जाओ, अगर मैं माजी में जाऊं, ये जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान बनाने में हमारा हाथ है, ये भी झूठ है। ये पहले कांग्रेस जब मजबूत थी, ये कांग्रेस में थे, जब देखा कि पाकिस्तान को
مسلمان بنانے جا رہے ہیں تو یہ ایک دم سے مسلم لیگ میں آ گئے، جن کا کوئی تاریخ نہیں ہے. ہر تاریخ میں یہ اسی طرح سیاہ تاریخ ہے ان کا. ہر وقت دیکھو یہ اپنے مفاد کے ہی پیچھے دوڑتے ہیں. ابھی ان کو شاید ایسا ذہن بنا ہوا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت بن جائے. یہ سیاسی یتیم بیچارے اپنا کوئی مورچہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے عوام کے پھر حقوق ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ ان کا اور خون چوسے. تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ العظیم وقت بدل چکا ہے اور جعفر آباد بھی تیزی سے الحمدللہ بدل رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے سچ کہوں، آپ کا پنجاب دشمن نہیں ہے. آپ کے دشمن وہی ہے جن کے پاؤں پر آپ پڑھ کر فخر کرتے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پنجاب کے ایم پی اے سے زیادہ آپ کے ایم پی اے کو پیسے ملتے ہیں. یہ جو جام کمال جب استعفیٰ دے رہے تھے اس کو بھی زبردستی گھسیٹ کر یہ لوگ اتار رہے تھے. ایک چور دوسرے چور کا ٹانگ کھینچ رہے تھے. تو اس نے ایک تقریر پریس کانفرنس کی، اس میں کہا کہ میں نے کم سے کم بلوچستان کے ہر ایم پی اے کو 5 ارب روپے دیے. جعفر آباد کے ڈیرہ لایار کے لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 5 ارب روپے کو 5 ہزار روپے کے نوٹ بھی کیے جائیں، یہ پورا ڈیرہ لایار سٹی اس سے ڈک جائے گا، چھپ جائے گا. اگر یہ پیسے ایمانداری کے ساتھ آپ عوام پر، آپ کے ترقی پر، آپ کے تعلیم پر، آپ کے صحت پر، آپ کے سیوریج پر، آپ کے نہروں پر، آپ کے ڈرینیج کے بل صفائیوں پر خرچ ہوتے، آج میرے جعفر آباد کا قسمت بدل چکا ہوتا. مگر بدقسمتی سے کہ ہمارے وسائل چوروں کے ہاتھ میں ہیں، اور جب تک انشاءاللہ ہم نہیں بدلیں گے یہ کچھ نہیں بدلے گا. اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. میرے بھائیوں، میں آپ سب لوگوں کا، اپنے بھائیوں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکال کر اپنے گوادر کے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی. اور میں آپ لوگوں کو 3 نعرے لگاؤں گا، بھرپور جواب دینا ہے ان کا انشاءاللہ، تاکہ یہ آواز تخت روجان کو ہلا سکے انشاءاللہ. ایسی جواب چاہیے مجھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، نعرہ رسالہ، رسول اللہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. جزاک اللہ. میں آپ سب لوگوں کا تہ دل سے، اپنے دوستوں کا، نوجوانوں کا، بھائیوں کا، میڈیا کے دوستوں کا، مزدوروں کا، ہاریوں کا، دادا ٹاکر کا، اس کے مزدور بھائیوں کا، سارے دوستوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ آپ لوگوں کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ لوگوں کے اولاد میں برکت دے، اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں برکت دے. اللہ آپ کو اور ہم ان سب کو غلامی سے نجات دلائے. والسلام. جزاک اللہ. ابھی دعا ہوگی، اس کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ ایک دوسرے سے اجازت چاہیں گے. والسلام. محمد عیسیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.